तो हेलो बच्चों, कैसे हो? On the basis of or on the demand of, even we can say on the requirement or due to the requirement of the different students, as I have read in the comments that many students are asking about that, sir, please make a complete video on the chapter force and pressure. So I am here with that chapter. In that chapter, in force and pressure, this is very important chapter for all those students who are studying in class 8 CBSE and even in state boards. It is very much important to all of you and even for all of us that this chapter is very much important. It is foundation. It lays a foundation for your forthcoming things what you will study in higher classes. Even you will study in class 9 about force and laws of motion. But that is another matter. Without wasting much more time, now I am going to start this chapter. Remember, force and pressure is the name of the chapter. This is chapter number 4 and this is part 1. And these are the topics. These are the topics involved in this chapter. So let us try to understand and let us try to complete that how many chapters. I will tell to you how many topics we can cover here. So all of you be ready for it. So be ready for it, all of you. And I will tell one thing surely, that here now I am going to commence the first topic. What is the topic? Try to understand. The name of the topic is force and its effect. But before going ahead, let us try to understand that what is force. The most important and simple definition of force is push or pull. Push or pull is called force. Is called force. Even in standard 11 you will study the same definition. Push or pull is called force. 8, 9, 11. Clear? Push or pull is called force. Or force is that physical quantity that can be measured with the help of spring balance. How much force you are applying on a body, you can measure this force with the help of a spring balance. Clear? Take a spring balance and then after you hang the object what you have to measure, and this is the handle, and there remains a pointer here. Clear? There remains pointer and the pointer runs on its surface. So this spring balance reads the value of force, or even we can say that the force of gravity by which that body is attracted towards the earth. Suppose you have hanged a body here and the pointer is showing 10 Newton. Means force of gravity acting on this body is 10 Newton, or weight of this body is 10 Newton. Force of gravity means weight. Weight is a kind of force. Weight is a kind of force. Clear? So after knowing about the basics of the force,
Now we should understand about that what are its effects. What are its effects? तो बच्चों आप लोग कलम कॉपी लेके बैठ जाएं और नोट करना शुरू करें। कहीं दिक्कत हो तो पॉज करके नोट कर लेंगे आप लोग। तो फोर्स कैन चेंज शेप और साइज और बोथ of an object. Clear? Moreover, this can change the direction of a moving body. So these all the things can force do. Clear? Force can change shape or size or both of an object. This can change the direction of a moving body. So let us try to understand how can we understand about this thing. Suppose you have a ball or suppose you have a brick. Clear? You have a brick. And if you hammer it, then the brick, what happens? Then the brick is broken now. The shape changes. And even you can say that the size also changes. So shape and size both changes. Both change. Shape and size both change. Moreover, suppose if you have a squeezing ball, soft ball, and you press it, then what will happen? Its shape and size change. So, moreover, at a time, a force can change either the shape of an object or the size of an object or both, and even the force can change the direction of a moving body. आप मान लो कि फुटबॉल खेल रहे हो ग्राउंड में, फुटबॉल आया आपके पास, आपने उसको पैर से मारा, यू किक्ड द बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन. The fast bowler or bowler simply delivers the ball to the batsman, and what happens? What happens? The batsman hits the ball and the direction of ball is changed and the ball runs towards the fence. Badminton even you can take. Badminton, carom board, these all are the examples of changing the direction. क्या ठीक है? बताइए, समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि फोर्स जो है शेप साइज बदल सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है. फोर्स और क्या कर सकता है? फोर्स जो है वो किसी रुकी हुई बॉडी को फोर्स कैन गिव मोशन to a body at rest. Force can stop the moving body. Force हटा दीजिए इसको. फोर्स कैन, बताइए क्या हो सकता है? फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज. फोर्स कैन इंक्रीज और
decrease the motion of a body। तो फोर्स ये सभी चीजें कर सकती है। नंबर 1 में तो मैंने बता दिया था, कैन चेंज द शेप और साइज और बोथ एंड द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्स कैन गिव मोशन टू ए बॉडी एट रेस्ट। मान लो कि आपके पास टेबल पर एक ईंट रखा हुआ है, सपोज इट्स अ ब्रिक। यू हैव अ ब्रिक ऑन द सरफेस ऑफ ए टेबल, ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल, ठीक है ना। यू हैव अ ब्रिक ऑन द सरफेस ऑफ ए टेबल। नाउ दिस ब्रिक इज एट रेस्ट इनिशियली, दिस ब्रिक इज एट रेस्ट इनिशियली। बताइए, ठीक है। नाउ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस बॉडी, नाउ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस बॉडी। तो क्या होगा, दिस ब्रिक विल स्टार्ट मूविंग। ये ब्रिक जो है, ये जो ईंटा है हमारे पास, ये चलना शुरू करेगा। तो फोर्स कैन गिव मोशन टू ए बॉडी एट रेस्ट। तो ये एग्जांपल यहां से क्लियर हो गया। मान लेते हैं कि आप फुटबॉल खेल रहे हो ग्राउंड में, स्कूल के फील्ड में। स्कूल तो ऐसे अभी बंद है। स्कूल के फील्ड में अभी मान लो कि आप ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हो, ये बॉल आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, v स्पीड से आ रहा है, v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। और आपने यहां पर क्या किया कि आपने इसको पैर लगा दिया यहां पर। तो जैसे ही आप इस बॉडी को, मूविंग बॉडी को, अभी ये मूविंग बॉडी है ना, अभी क्या है, ये मूविंग बॉडी है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये जो है, आप जैसे ही इसमें पैर लगाओगे, क्या होगा, ये रुक जाएगा। ये अभी तो मूविंग बॉडी था, मूविंग बॉडी। फिजिक्स में समझने से, फिजिक्स में लिखने से ज्यादा उचित समझना है। आप कितना लिखोगे, भंडार है इसमें कॉन्सेप्ट्स का, थ्योरम्स का, लॉज का, रूल्स का, मैथमेटिकल अप्रोच, डेराइवेशन, न्यूमेरिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, वेरिफिकेशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मैथमेटिक्स से बेहतर है ये, या यूं कहें कि मैथ्स और फिजिक्स में बेहतर क्या है बताना संभव नहीं है। बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेडली आई हैव टोल्ड टू यू, कितना बार मैंने बोला ये बात। तो क्या होगा, जैसे आप यहां पर पैर लगाते हो, ये बॉडी क्या होता है, यहां रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो रुक जाता है तो क्या होगा भाई, ये बॉडी रुक जा रहा है यहां पर। तो क्या होगा, सो बताइए। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। फोर्स जो है चलते हुए बॉडी को रोक सकता है, यह भी क्लियर हो गया। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मोशन ऑफ ए बॉडी। इसको समझ लेते हैं क्या है, ये कैसे संभव है भाई। मान लेते हैं एक बॉडी है, ये v मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, या मान लो ये 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। आपने क्या किया कि इस पर एडिशनल कुछ फोर्स लगा दिया, किसी भी तरह का फोर्स ये हो सकता है, ठीक है ना। आपने इस पर मान लो एडिशनल फोर्स लगा दिया, मान लो आपने इस पर मस्कुलर फोर्स ही लगा दिया। ये तो ऑलरेडी 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल ही रहा था ये बॉडी, और उसके बाद आपने इस पर और फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, इस बॉल का, इस बॉडी का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इस बॉल का, इस बॉडी का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। आप मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले सकते हो, आप व्हीकल्स का एग्जांपल ले सकते हो, मोटर गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हो, बस, ट्रक, एनी एग्जांपल्स यू कैन टेक। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें डीजल का जो खपत होता है उसके हिसाब से उस पर जो है फोर्स का एक्सर्शन होता है। कहीं ना कहीं से तो वो फोर्स से ही प्रभावित होता है, जिसके वजह से वो स्पीड जो है उसका बढ़ता है। एंड फोर्स कैन डिक्रीज द मोशन, एंड फोर्स कैन डिक्रीज द मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स जो है बॉडी का मोशन कम भी कर सकता है। गाड़ी जा रही है, व्हीकल जा रहा है, आप क्या करोगे, उस पर ब्रेक अगर लगाते हो तो क्या होगा, वो रुक जाएगा ना वो बॉडी। द व्हीकल विल स्टॉप, वो गाड़ी रुक जाएगी वहां पर। मान लेते हैं कि यहां पर तो हमने फोर्स लगाया, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। अलोंग द, इसको हटा देते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखिए यहां पर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, मान लो यही बॉडी 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, और आपने इधर से फोर्स लगा दिया, या मोटरसाइकिल जा रहा है, मान लो आपने उस पर ब्रेक लगा दिया, बस जा रही है, आपने उस पर ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा, वो जो मूविंग, मान लो 100 की स्पीड से जा रही है गाड़ी, 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है गाड़ी, आपने ब्रेक लगाया, क्या होगा, उसका स्पीड कम जाएगा। तो फोर्स ने क्या किया, फोर्स ने स्पीड भी बढ़ा दिया, और फोर्स ने क्या किया, स्पीड को घटा भी दिया। तो यहां तक हम लोगों ने पहुंचा, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है। फोर्स एंड इट्स इफेक्ट खत्म हो गया। इतना फिलहाल काफी है आप लोगों के लिए, 8 क्लास वाले लोगों के लिए। ठीक है। 8 क्लास वाले लोगों के लिए इतना काफी है। टॉपिक नंबर 2, फोर्स। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, किताब कॉपी लेकर बैठ जाइए। फोर्स एज वेक्टर क्वांटिटी। ये टर्म आपके लिए नया होगा, वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि कुछ बच्चे इसको जानते भी होंगे, है ना, कुछ बच्चे इसको जानते भी होंगे, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अभी तक तो आपने स्केलर क्वांटिटी को पढ़ा, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ पर डिपेंड करता। ठीक है। जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता हो। ठीक है ना। ठीक, वेरी गुड। तो ये है क्या चीज, कैसे समझेंगे इसको, हम कैसे समझेंगे इसको, ये समस्या की बात है। बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, बहुत आसान सा लैंग्वेज में एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। आप अपने टेबल पर एक किताब रख लो या कोई ईंटा रख लो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि यहां पर इसके सरफेस पर आप किसी खास एंगल पर
आप एक फोर्स लगाइए। यहां पर मान लो कि इसके रिस्पेक्ट में अभी हम 60 डिग्री के एंगल पर मान लेते हैं कि फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो ब्रिक है, वो जो ईंटा है, ठीक है ना, आप यहां से भी फोर्स ऐसे इस पर लगा सकते हो, इधर से भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहां से लगाओगे तो फिर आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, एंगल को जानने के लिए, ठीक है ना। यहीं पर मान लेते हैं, ठीक है। या आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, साधारण सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कि टेबल पर, ये रहा टेबल, ठीक है, ये टेबल पर मान लो कि एक किताब आपने रखा, ठीक है, ये आपने यहां पर एक किताब रख दिया भाई। और अब आप इस किताब पर का जो एज है, जो एक किनारा है, उस पर आप एक फोर्स लगाइए। मान लो आपने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है। और मान लेते हैं कि अभी ये जो फोर्स आप लगा रहे हो वो मान लो कि है 30 डिग्री पर। कितना डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये मान लीजिए कि 30 डिग्री पर लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन। अब क्या करेंगे कि आप इसमें जो मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है। और अब इस फोर्स को के डायरेक्शन को आप उतना ही फोर्स लगाओ, फोर्स को बढ़ाना नहीं। मान लो आपने यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब उतना ही फोर्स किसी अलग एंगल पर लगा के देखिए। मान लो कि अगर इस केस में अगर ये किताब आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है, ये किताब आपका अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई मूवमेंट, कोई मोशन, कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो आप एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दो, आप एंगल को कम कर दो इस बार, ठीक है। इस फोर्स को जो अभी 30 डिग्री पर था उसको आप कर दीजिए थोड़ा कम। मान लो कि मैं कर देता हूं इसको 15 डिग्री पर। कितना डिग्री पर कर दिया हूं इसको? अब इस फोर्स के डायरेक्शन को कितना डिग्री पर मैं कर दिया हूं? 15 डिग्री पर कर दिया हूं। ये 15 डिग्री का एंगल। तुम देखोगे कि उतना ही फोर्स इस बुक में, इस किताब में कुछ न कुछ हलचल पैदा कर देता है, कुछ न कुछ इसमें डिफरेंस ला देता है। पहले जो कुछ भी हो रहा था उसके अपेक्षा ये चेंज हो जाता है। इनिशियली अगर ये रुकी हुई थी किताब, मालूम नहीं चल रहा था ये ना, अब इसमें एक मोशन आ जाएगा, एक मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम कर दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सो बता देता हूं। मैंने कहा कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बच्चे जब 7 से 8 में आते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, कुछ नया चीज आ जाता है। क्यों हड़बड़ाएंगे? आपका जब प्रमोशन हो गया, आप नए क्लास में आ गए, तो सिलेबस का भी तो प्रमोशन हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमको तो पढ़ना ही है ये सब चीज, इसलिए इसका फाउंडेशन 8 से दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है, द स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आप 5 किलोग्राम राइस और 10 किलोग्राम राइस को ऐड करोगे तो 15 किलोग्राम राइस हो जाएगा। डायरेक्शन से इसमें कोई मतलब नहीं है। 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट और 8 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 11 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल यहां पर इस लेवल में। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग डायरेक्शन को खूब कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। देखिए तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो कुछ भी है, ठीक है।
तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू किन किन चीजों से बदल जाएगा? या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो इसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या इसका डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों बदल जाए। वेक्टर क्वांटिटी बदल जाते हैं अगर या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या डायरेक्शन बदल जाए, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदल जाए, तो वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट बदल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोर्स है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी चर्चा है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है ना? तो इसको और अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है फोर्स, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, तो इस बॉडी पर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा होगा? अगर किसी बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, रखा हुआ है या लटका हुआ है, आपने धागा में हैंग कर दिया या कहीं भी रख दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, तो इस बॉडी को अर्थ अपने तरफ कितने फोर्स से खींच रहा होगा? अर्थ इस बॉडी को उतना ही फोर्स से खींच रहा होगा जितना कि इस बॉडी का वेट होगा। तो इस बॉडी का वेट कितना होगा? इस बॉडी का वेट होगा mg, मतलब 10 इंटू 10। स्मॉल जी का वैल्यू 10 होता है। ये जो स्मॉल जी है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन एक नया टर्म आ गया आपके लिए। ठीक है, ये रहा अर्थ मान लो, हालांकि इतना ऐसा नहीं है, थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा कम कर देता हूं। देखो, मान लो, ठीक है, ये रहा अर्थ जो है इस बॉडी को अपने तरफ कितने फोर्स से खींच रहा होगा। तो अर्थ इस बॉडी को अपने तरफ 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा होगा। The earth is attracting this body whose mass is 10 kilogram with a force of 100 Newton. किसी बॉडी का वेट जो होता है ना, वो एक्चुअली उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ on the body with the help of which or due to which the body is being attracted towards the center of the earth. कोई भी बॉडी कहाँ है, जहां कहीं भी है, वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ ही उसका वेट का डायरेक्शन होगा। वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर हो गया ना? अच्छी बात। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये जो स्मॉल जी आ गया हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और अर्थ के लिए इसका वैल्यू होता है 10। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे तो डिटेल्स में अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। जैसे कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। बताइए क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला भाई,
क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होता है क्या? होता है ना? बताइए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय, बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, स्पीड बता दिया। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? वो वेलोसिटी बताता है। समराइज कर देता हूं, ध्यान से देख लो। देखो, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस स्पीड कहलाता है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से सूचित करते हैं हम लोग। रेट, या फिर तुम डी से भी इंडिकेट कर सकते हो। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? वो नहीं जानना है, ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन जो होता है वो जर्क कहलाता है, जो कि अभी बहुत कम है, 8 क्लास के लिए ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। होता तो वो भी है, जर्क भी जो है, जर्क जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन होता है। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो हमने चर्चा किया फोर्स एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? यहां पर ये चर्चा हो गया हम लोगों का, फोर्स एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे देखते हैं कि क्या है आगे पढ़ने का, ठीक है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है यहां पर, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए, फोर्स एज वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने समझ लिया। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या रहा है? बताइए। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, समझते हैं इसको, क्या है ये? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखते हैं कि क्या है ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक बॉडी बना लेते हैं भाई। बहुत अच्छे, आप एक बॉडी बना लो, अच्छा सा, सुंदर सा, है ना, नन्हा मुन्ना सा, बेजोड़ एक बॉडी बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, है ना? चलिए, फर्स्ट क्लास। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? संतुलित, मतलब वो फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए। As far as the definition of balanced force is concerned, I will tell only one thing. If the resultant of the system of force is 0, नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझिए इसको, अच्छे से समझिए। मान लो कि हम लोगों ने इस सरफेस पर, मान लीजिए हम लोगों ने इसके इस फेस पर फोर्स लगा रखा है, ठीक है? और एक फोर्स इधर से भी लगा रखा है। तुम कुछ और भी फोर्स लगा सकते हो, ये बड़ी बात, कोई भी फोर्स आप लगा सकते हो, कितना भी फोर्स लगा सकते हो, ठीक है? अच्छी बात। मान लेते हैं कि इधर से आप फोर्स लगाए F1 = 10 न्यूटन,
और F2 इक्वल टू 11 न्यूटन सपोज कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। इधर से भी आप फोर्स लगा दिए, F3 इक्वल टू 11 न्यूटन, या तुम कुछ चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वही लेंगे। मान लो कि हमने ले लिया 12 न्यूटन, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। और F4 लगा दिया हमने 9 न्यूटन। देखो इसको, देख लीजिए इस फिगर को अच्छे से। तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका रिजल्टेंट निकालो कि अगर इसका रिजल्टेंट F हो तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो ये ऐड हो जाएगा, F1 प्लस F2 और हो जाएगा 10 न्यूटन प्लस 11 न्यूटन 21 न्यूटन। वैसे ही उधर भी हम लोग देख लेते हैं, अगर इसका रिजल्टेंट F डैश हो जाए, इसको F प्राइम भी कहते हैं हम लोग, अगर इसका रिजल्टेंट F डैश हो जाए तो क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये दोनों का फोर्स का डायरेक्शन जो है सेम है। ये देखो, ये क्या था, लेफ्ट टू राइट था, दोनों फोर्स था लेफ्ट टू राइट, और वहां क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, उधर से फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, सो आप देख लो यहां पर, ये दोनों फोर्स भी तो ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में होने की वजह से। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, F3 प्लस F4, ठीक है। बस डायरेक्शन जो है इसका क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। पहले के रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो 12 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन 21 न्यूटन। अब इधर से भी एक 21 न्यूटन का सिस्टम लग रहा है, इधर से भी 21 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दिस इज द सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस एंड इट्स रिजल्टेंट इज F। तो इधर से लग रहा है F इक्वल टू 21 न्यूटन, और इधर से लग रहा है F डैश, इधर से लग रहा है F डैश इक्वल टू 21 न्यूटन। देखिए इसको, तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि इधर से लेफ्ट टू राइट इस बॉडी पर 21 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उधर से सेम बॉडी पर 21 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स तो इक्वल और अपोजिट हो गया ना। ये बॉडी जो है जहां है वहीं रह जाएगी, ये बॉडी इधर उधर खसकेगा नहीं, नहीं खसकेगी ये बॉडी, ठीक है ना। ये बॉडी जो है रेस्ट में रहेगी किसी एक जगह पर। तो जब ऐसा हो तो ये बैलेंस्ड फोर्स का केस होता है, ठीक है ना। और जब बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो या क्या हो उससे मतलब नहीं है, यहां तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही है ना। तो अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो क्या होगा भाई, यहां पर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं। ये देखो, ये जो बॉडी, ये जो मार्कर जो नीचे गिरा, क्यों गिरा, फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और उसमें एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, है ना। इसलिए तो बॉडी में मूवमेंट आया, मोशन आया। लेकिन ये बॉडी पर तो रिजल्टेंट फोर्स ही 0 हो गया, तो फिर यहां पर एक्सेलरेशन का कहीं कोई बात ही नहीं है। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग इसमें कुछ और भी समझ सकते हैं, जैसे कि इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, हटाइए उसको, ठीक है। बैलेंस फोर्स हमने समझा, अब अनबैलेंस फोर्स को समझते हैं। बैलेंस्ड फोर्स को हमने समझा, अनबैलेंस फोर्स देखते हैं क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स,
फिर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये रहा वो ऑब्जेक्ट, आप इसको मिला दो अच्छे से। सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस लेते हैं इस पर हम लोग। आप जितना फोर्स चाहो इसके किसी भी सरफेस पर कंसीडर कर सकते हो, और इधर से भी जितना चाहो आप उतना फोर्सेस इस पर कंसीडर कर सकते हो। सो ये जो है दिस इज द सिस्टम ऑफ फोर्स। अलग अलग वैल्यूज का हमने लिया। ये रहा F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3 और ये हो गया F4। इसको मान लेते हैं हम लोग F5, इसको मान लो F6। ठीक है। डायरेक्शन तो हम देख ही रहे हैं भाई, लेफ्ट टू राइट चल रहा है इसका डायरेक्शन, इसका राइट टू लेफ्ट चल रहा है डायरेक्शन का जो मामला है। आप इस पर फोर्स का वैल्यू कुछ ले सकते हो। मान लो कि यहां पर हमने लिया 1 न्यूटन, ये ले लिया हमने F2 ले लिया, मान लो कि हमने ले लिया 2 न्यूटन। ठीक है, ये ले लिया 2 न्यूटन, ये F3 हम लोगों ने मान लो ले लिया 3 न्यूटन, और ये F4 ले लिया हम लोगों ने 4 न्यूटन। ठीक है। इधर से F5 मान लेते हैं कि हमने ले लिया 10 न्यूटन, और F6 ले लिया हम लोगों ने मान लो कितना ले लेंगे, मान के चलिए 5 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 3 6 एंड 4 10। इसका रिजल्टेंट हो गया 10 न्यूटन। इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना हो गया, 10 न्यूटन। और इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। ठीक है। अब इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, उधर से लग रहा है 15 न्यूटन। देन व्हाट विल हैपन, बताइए, देन व्हाट विल हैपन। एक्चुअली व्हाट विल हैपन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, the body will come in motion, it will move towards the left direction। क्योंकि इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे ना, इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो जो F नेट जो आएगा, जिसको कि हम लोग नेट फोर्स कहते हैं या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, वो कितना हो जाएगा। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तुम चाहो तो राइट टू लेफ्ट भी कंसीडर कर सकते हो। इतना तय है ना कि बॉडी जो है जिधर से बड़ा फोर्स लग रहा है उधर से ही ये मूव करेगी ये बॉडी। द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द बिगर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। तो इसका नेट निकाल लेते हैं हम लोग। नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा। 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, और 15 न्यूटन इधर से लग रहा है। आप किसी एक का साइन माइनस में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो अपोजिट है ना। वहां पर भी हम लोगों ने लिया था, इक्वल एंड अपोजिट किया था हम लोगों ने। तो 10 न्यूटन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15 न्यूटन इक्वल टू -5 न्यूटन। ये बॉडी 5 न्यूटन के फोर्स से, ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि जिधर से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फोर्स को, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चलेगा, ये बॉडी चलेगी। ये बॉडी, दिस बॉडी विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये माइनस साइन तो बताता है डायरेक्शन कि ये बॉडी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही होगी, और ये जो 5 न्यूटन आया ये बताता है उसका मैग्नीट्यूड। मतलब अल्टीमेटली ये बॉडी जो है 5 न्यूटन के फोर्स से चलती रहेगी इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आज हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, आप हमारा वीडियो देखते रहिए।
जब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे यहाँ पर, तो शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। और ये टाइप्स ऑफ फोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधा पौन घंटा का ये लेक्चर है कम से कम। टाइप्स ऑफ फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले लेक्चर में, अगले एक्सप्लेनेशन में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स जरूर पढ़ेंगे। और आज हम यहीं पर आपको लीव करते हैं। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर किसी तरह से स्कूल खुल जाती है, विद्यालय खुल जाती है, तो हम लोग सब विद्यालय में मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, सभी परीक्षाएं भी होंगी। लेकिन वी होप सो, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है अनटिल की कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हम लोगों को न मिल जाए। तब तक आप लोग घर पर पढ़ाई करते रहिए, अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेस्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।